أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی روحانی، جسمانی اور وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ہاں جی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں لیول 3 ہے، پہلے لیول 1، لیول 2، اب لیول 3۔ لیول 1 میں ہم نے قرآنی قاعدہ کا پیج نمبر جو ہے وہ ہم نے پیج نمبر 5 سے لے کے پیج نمبر 8 تک ہم نے قرآنی قاعدہ کا پڑھا، اور لیول 2 میں ہم نے پیج نمبر 9 سے لے کے پیج نمبر 9 سے لے کے 20 تک، یعنی 9 سے لے کے 20 تک۔ اور اب جو ہے لیول 3 میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز پیج نمبر 21 سے 31 تک، صفحہ نمبر 21 سے 31 تک، پیج نمبر 21 سے لے کر 31 تک انشاءاللہ العزیز، جس میں ہم پڑھیں گے جزم کا بیان، ٹھیک ہے، اور حروف مدہ، حروف لین، کھڑی زبر کی پہچان کریں گے۔ اور حفظ میں ہم انشاءاللہ العزیز یاد کریں گے سورۃ المعون، سورۃ الہمزہ اور سورۃ النصر، یہ لیول 3 کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دعاؤں میں شامل ہے تشہد، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ ثنا پڑھ چکے، رکوع کی تسبیحات پڑھ چکے، پھر اس کے بعد تشہد، رکوع اور سجدہ کی تسبیحات آپ پڑھ چکے، اور پھر اس کے بعد ہے تشہد اور باقیات الصالحات، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات۔ تو چلیں اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز جزم۔ جی، جس طرح سے ہمارے سامنے کھل چکا ہے جزم کا پیج، تو ہم جزم کی پریکٹس کریں گے، جزم کا سبق پڑھیں گے، اور سبق کے ساتھ ہی جزم کی ہم مشق کریں گے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 21، پیج 21، صفحہ نمبر 21، ٹھیک ہے، اس میں ہے جزم۔ اور جزم کے ساتھ ساتھ اسی میں ہم انشاءاللہ العزیز یہ بھی سیکھیں گے کہ حروف قلقلہ کون سے ہیں، کون سے حروف ہیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے، وہ بھی ہم اسی پیج میں انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے، اور میں نشاندہی کروں گی اس میں سے کون کون سے حروف جو ہیں وہ حروف قلقلہ ہیں، اور قلقلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو چلیں اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، دیکھیں الف ہے، تو الف کے اوپر جب زبر، زیر پیش یا ایون کے جزم بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، پھر ہم اس کو حمزہ بولتے ہیں، حمزہ پڑھتے ہیں، پھر الف نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، حمزہ زبر با اب۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پہلا ہی سٹارٹ کا جو حرف ہے ہمارے پاس وہ ہے با، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حرف با، حروف با جو ہے، حرف با حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جیم حروف قلقلہ ہے، پھر اس کے بعد دال حروف قلقلہ ہے، پھر اس کے بعد قوف جو ہے وہ حروف قلقلہ ہے، اور تو جو ہے وہ بھی حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں انڈر لائن کر سکیں اس کو، اگر تو میں اس کو انڈر لائن کر سکی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز میں آپ کو اسی لیزر کے ساتھ ہی آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گی تاکہ آپ کو بتا سکوں اور سمجھا سکوں۔ جی، یہ انڈر لائن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہ با حروف قلقلہ ہیں، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دال حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جیم حروف قلقلہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ تو حروف قلقلہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ قاف حروف قلقلہ ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 حروف جو ہیں یہ حروف قلقلہ ہیں، ان کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے قلقلہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب، یہ قلقلہ ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اب اب تو یہ قلقلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب
इब उब, ये कलकला है, ठीक है। अब ता के ऊपर कलकला नहीं करना। हमजा जबर ता अत, हमजा जेर ता इत, हमजा पेश ता उत, अत इत उत। हमजा जबर सा अस, हमजा जेर सा इस, हमजा पेश सा उस। आपने जबान की नोक को सामने वाले दो दांतों के सिरे से लगाना है तो फिर सा अदा होगा, इसमें सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। अस ये गलत है, ठीक है। आपने पढ़ना है अस इस उस। जबान को सामने वाले दो दांतों के सिरे से टकराएंगे तो सा की आवाज सही निकलेगी। हमजा जबर जीम अज, हमजा जेर जीम इज, हमजा पेश जीम उज, अज इज उज। हमजा जबर है अह, हमजा जेर है एह, हमजा पेश है ओह। गले के दरमियान से आवाज निकालनी है आपने, अह एह ओह। हमजा जबर खा अख, गले के ऊपर वाले हिस्से से। हमजा जेर खा इख, हमजा पेश खा उख, अख इख उख, अख इख उख। अब यह हरूफ कलकला में से फिर से दाल। हमजा जबर दाल अद, हमजा जेर दाल इद, हमजा पेश दाल उद, अद इद उद। हमजा जबर जाल अज, हमजा जेर जाल इज, हमजा पेश जाल उज, अज इज उज। हमजा जबर रा अर, हमजा जेर रा इर, हमजा पेश रा उर, अर इर उर। हमजा जबर जा अज, हमजा जेर जा इस, हमजा पेश जा उज, अज इज उज। हमजा जबर सीन अस, हमजा जेर सीन इस, हमजा पेश सीन उस, अस इस उस। हमजा जबर शीन अश, हमजा जेर शीन इश, हमजा पेश शीन उश, अश इश उश। हमजा जबर सौद अस, हमजा जेर सौद इस, हमजा पेश सौद उस, अस इस उस। ये भी हरूफ मुस्तालिया पुर पढ़े जाने वाले हरूफ में से है। सौद अस पुर पढ़ना है, अस इस उस। हमजा जबर द्वाद अद, हमजा जेर द्वाद इद, हमजा पेश द्वाद उद, अद इद उद। ये जबान की करवट को ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ से लगाना है तो तब द्वाद अदा होगा, ठीक है। हमजा जबर तो अत, कलकला करेंगे। हमजा जेर तो इत, हमजा पेश तो उत, अत इत उत। हमजा जबर ज़ो अज, हमजा जेर ज़ो इज, हमजा पेश ज़ो उज, अज इज उज। हमजा जबर आइन आ, गले के दरमियान से। हमजा जेर आइन ए, हमजा पेश आइन ओ, आ ए ओ। हमजा जबर गईन अग, गले के ऊपर वाले हिस्से से। हमजा जबर गईन अग, हमजा जेर गईन इग, हमजा पेश गईन उग, अग इग उग। हमजा जबर फा अफ, हमजा जेर फा इफ, हमजा पेश फा उफ, अफ इफ उफ। हमजा जबर कौफ अक, जबान की जड़ से ये अदा होना है और वहां पर आपने कलकला करना है। अक, हमजा जेर कौफ इक, हमजा पेश कौफ उक, अक इक उक। हमजा जबर कैफ अक, हमजा जेर कैफ इक, हमजा पेश कैफ उक, अक इक उक। हमजा जबर लाम अल, हमजा जेर लाम इल, हमजा पेश लाम उल, अल इल उल। हमजा जबर मीम अम, हमजा जेर मीम इम, हमजा पेश मीम उम, अम इम उम। दोनों होंठों को की खुश्क वाली जगह को आपने आपस में मिलाना है। अम इम उम। हमजा जबर नून अन, हमजा जेर नून इन, हमजा पेश नून उन, अन इन उन। हमजा जबर वाव, वाव वाव नहीं कहना, वाव वाव नहीं होता, वाव वाव। दोनों होंठों को गोल करेंगे
और मिलाएंगे होंठों को, बस दरमियान से थोड़ी सी जगह खुलेगी, अदरवाइज साइडों से पूरा होंठ जो है, दोनों होंठ आपस में मिलेंगे। तो ये है वाव, औ, हमजा जबर वाव, औ, हमजा जेर वाव, इव। अब ये इव कोई नहीं होता, नहीं पढ़ा जाता, लेकिन चूंकि सिर्फ यहाँ पर ये बताया गया है कि वाव से पहले जेर होगा तो वो इव पढ़ा जाएगा। जैसे औ, असल जो लफ्ज है वो है औ और ऊ, ठीक है, औ ऊ। हमजा जबर हा, सीने वाली जो गले का लास्ट वाला हिस्सा है, आखिरी हिस्से से, गले के आखिरी हिस्से से हा, हमजा जबर हा आह, हमजा जेर हा एह, हमजा पेश हा ओह, आह एह ओह, हमजा जबर हमजा आ, ये भी आखिर में जाके झटका लगेगा। हमजा जेर हमजा ए, गले के आखिरी हिस्से में, हमजा पेश हमजा ओ, आ ए ओ, हमजा जबर या, आई, हमजा जेर या, ई, आई ई। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा इव नहीं होता, इसी तरह से उज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपने साथ ही मश्क, आपको पता है मैं लाती हूं हमेशा, ताकि सामने सबक को सामने रखते हुए ही मश्क की जाए और पता चले कि हमने यहाँ पे हमने कौफ को कैसे मिलाया जा। हमजा पेश कौफ उक, तो यहाँ पे आ गया हमजा पेश कौफ उक, ता पेश लाम तुल, उक तुल। हमजा जबर रा अर, ये देखिए हमजा जबर रा अर, सीन जबर सा और सा, लाम जबर ला और साला। इसी तरह वाव जबर नून वन, हा जबर रा हर, वन हर, वल असरी का असफिन, लु लु अन, यहां झटका देंगे, लाम पेश हमजा लु, लु लु अन, शीन जबर हमजा शा, नून दो जेर निन, शा निन, ता जबर आइन ता, लाम जबर ला, ताला, मीम पेश मु, तालमु, काफ जबर हमजा क्या, सीन दो जबर सन, क्या सन, क्या सन। यदराउकुम, यदराउकुम, इक़रा, हमजा जेर कौफ इक़, रा जबर हमजा रा, इक़रा, शीन जेर हमजा शी, ता पेश मीम तुम, शी तुम, शी तुम। ठीक है, तो इसको इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है जी, अब हमारे सामने खुल चुका है पेज हरूफे मद्दा का। ठीक है, अब हम हरूफे मद्दा पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको बता दूं कि हरूफे मद्दा 3 हैं। ठीक है, अलिफ वाओ या। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाओ से पहले पेश हो तो वाओ मद्दा होगा, और या से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। ठीक है, तो इस तरह, और मद्दा का माना होता है खींचना। अब हमने इनको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक है, जिस हर्फ के साथ अलिफ होगा, जिसके साथ वाव होगा, जिसके साथ या होगी, तो एक अलिफ के बराबर इसको खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, बा जबर अलिफ बा, बा पेश वाव बू, बा जेर या बी, बाबू बी, ता तू ती, सा सू सी, जा जू जी, हा हू ही, हा को गले के दरमियान से, खा खू खी, गले के ऊपर वाले हिस्से से, दा दू दी, रा, जबान की नोक को सामने वाले दो दांतों के सिरे से लगाएंगे, रा रू री, रा रू री, जा जू जी, सा सू सी, शा शू शी, स्वा सू सुई, स्वाद को पुर पढ़ेंगे। ठीक है, स्वा स्वा सू सुई, दा दू दी, ता तू ती,
ज़ा ज़ू ज़ी, आ गले के दरमियान से आ उ, आ ऊ ई, ग़ा गू गी, फा फू फी, क़ा कू की, का कू की। ये था कौ, जबान की जड़ से कौ, और ये है बारीक काफ का कू की, ला लू ली, मा मू मी, ना नू नी, वा वू वी, हा हू ही। गले के आखिरी हिस्से से हा हू ही, आ ऊ ई, या यू ही। अब साथ इसके मश्क है, ठीक है, सबक के साथ ही मश्क। हरूफे मद्दा की मश्क अब हम करेंगे। कौफ जबर अलिफ कौ, लाम जबर ला, कौला। कौ को खींचेंगे लेकिन लाम को छोटा पढ़ेंगे। कौला। खा जबर अलिफ खा, तो जबर तो, खा तो, बा जबर बा, खा तौबा। खा को खींचेंगे तो और बा को छोटा पढ़ेंगे। खा तौबा। आइन जबर अलिफ आ, कौफ जबर कौ, आ कौ, बा जबर बा, आ कौबा। इसी तरह कौलू, दोनों के साथ अरूफे मद्दा हैं। साहूना, कूलू, मुस्लिहून, यशऊरून, यअमलून, हफीजुन, लतीफुन, रहीमुन, क़ील, उहीत, सीक़। ठीक है, ये हरूफे थे, हरूफे मद्दा। ठीक है, इनको खींच कर अदा करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। पहले सबक का आप अच्छे तरह से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मश्क करेंगे आप, तो इंशाल्लाह इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हरूफे मद्दा। ठीक है जी, हमारे सामने पेज खुल चुका है अब हरूफे लीन का। ठीक है, जिस तरह से हरूफे मद्दा हम पढ़ रहे थे उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे हरूफे लीन। ठीक है, लेकिन हरूफे मद्दा थे 3, अलिफ वाओ या। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा, वाओ से पहले पेश हो तो वाओ मद्दा, या से पहले जेर हो तो या मद्दा। ये हमने पढ़ा। लेकिन अब हमारे सामने है हरूफे लीन। ये हरूफे लीन 2 ही हैं, वाओ और या। वाव और या है, और वाव और या से पहले कोई फर्क नहीं, दोनों से पहले, वाव से पहले भी जबर होगी और या से पहले भी जबर होगी। तो वाव और या लीन होंगे। वाव और या जब साकिन हो और उनसे पहले जबर हो तो वो वाव और या ये लीन होते हैं। ठीक है, और लीन का मतलब होता है नरमी से अदा करना, लेकिन जो है उसी तरह से हम पढ़ेंगे, उसी तरह से हम खींचेंगे जिस तरह से हमने हरूफे मद्दा को पढ़ा। बा जबर वाओ बाऊ, बा जबर या बई, बाऊ बई, ता जबर वाओ ताऊ, ता जबर या तई, ताऊ तई, सऊ सई। मखारिज का आपने ध्यान रखना है, जबान की नोक जब सामने वाले 2 दांतों के सिरे से लगे तो सा अदा होता है। सऊ सई, जाऊ जई, गले के दरमियान से हा अदा होगा, हाउ हाई, खाऊ खई, दाऊ दई, रऊ जई, रऊ रई, जऊ जई, सऊ सई, शऊ शई, सऊ सई, दऊ दई, तऊ तई, ज़ौ ज़ई, आऊ आई, गौ गई, फ़ौ फ़ई, क़ाफ को ज़बान की जड़ से क़ौ क़ई, क्यौ कई, लौ लई, मऊ मई, नौ नई,
वाऊ वई, हाउ हा गले के आखिरी हिस्से से, हाउ हई, आउ आई, यऊ यई। अब है हरूफ लीन की मश्क, ठीक है। आइन जबर आ, आइन को छोटा पढ़ेंगे। फा जबर वाओ फाऊ, फू नहीं पढ़ना, फाऊ, आ फाऊ। नून जबर अलिफ ना, आ फाऊ ना। काफ जबर वाओ काऊ, लाम दो पेशलुन, काउलुन। या जबर वाओ यऊ, मीम जबर मा, यौमा। हमजा जेर ई, यौमा ई। जाल दो जेर जिन, यौमा इजिन। कौसैनी, जौजन, यौमा। यरौनहा, औतादन, तौबतन, कौमी, सौमन। स्वाद को पुर पढ़ना है, ठीक है। सौमन, औमन, ठीक है। रूफे मद्दा और रूफे लीन में आपने ये फर्क करना है कि हरूफे मद्दा के से पहले मुख्तलिफ हरकत हैं, जबर है, पेश है, जेर है, लेकिन यहाँ पर हरूफे लीन में एक ही है, वो है जबर, वाव और या से पहले जबर, ठीक है जी। हमारे सामने पेज खुल चुका है, पेज नंबर 30 और 31। सबक के साथ ही, जिस तरह आपको पता है कि मैं सबक के साथ ही मश्क लाती होती हूँ ताकि सबक के साथ ही मश्क की जाए, ताकि अच्छे तरीके से उस सबक की मश्क हो जाए और अच्छे तरीके से उस हरकत की भी पहचान हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे सामने है जी, हमजा खड़ी जबर आ, ठीक है। अरबी में हम इसको पढ़ते हैं हमजा फता तवीला आ भी इसको पढ़ते हैं, और अलिफ सगीरा आ भी पढ़ते हैं। अलिफ सगीरा आ, हमजा फता तवीला आ, या हमजा खड़ी जबर आ। आवाज इसकी आ ही आएगी, ऊपर को ही उठेगी, ठीक है। और इसको एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करते हैं, खींचते हैं। ये हरफ मद्दा के बराबर खींचा जाता है, अलिफ मद्दा के बराबर। तो चलिए बेटा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमजा खड़ी जबर आ, बा खड़ी जबर बा, ता खड़ी जबर ता, सा जबान की नोक से आपने अदा करना है, ठीक है। सा का मखरज याद रखना है आपने। सा खड़ी जबर सा, सीटी की आवाज ना आए। अगर आप कहेंगे सा तो ये गलत होगा, ठीक है। सा। जीम खड़ी जबर जा, हा को आपने गले के दरमियान से निकालना है। हा खड़ी जबर हा, खा खड़ी जबर खा, दाल खड़ी जबर दा, जाल। सा और जाल का एक ही मखरज है, सा जाल और ज़ा, ठीक है। जाल खड़ी जबर जा, रा खड़ी जबर रा, जा खड़ी जबर जा, सीन खड़ी जबर सा, शीन खड़ी जबर शा, स्वाद खड़ी जबर सौ, द्वाद खड़ी जबर दौ, तो खड़ी जबर तो, ज़ा खड़ी जबर ज़ा। आइन, आइन को भी गले के दरमियान से निकालना है। आइन और हा का एक ही मखरज है। आइन खड़ी जबर आ, गैन खड़ी जबर गौ, गैन और खा का एक ही मखरज है। फा खड़ी जबर फा, कौफ, कौफ को जुबान की जड़ से अदा करना है आपने, कौफ। कौफ खड़ी जबर कौ, कैफ, कैफ खड़ी जबर का, लाम खड़ी जबर ला, मीम खड़ी जबर मा, नून खड़ी जबर ना, वाव खड़ी जबर वा, हा खड़ी जबर हा। गले के आखिरी हिस्से से, सीने से, हा खड़ी जबर हा, हा खड़ी जबर हा। ये हा हैं दोनों और ये हा है गले के दरमियान से, हा हा। हमजा खड़ी जबर आ, हमजा का भी मखरज हा वाला ही है, गले के आखिरी हिस्से से। या खड़ी जबर या। अब है जी इसकी मश्क। मश्क अब आप देखें कैसे आप मश्क करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खड़ी जबर रेड कलर की है, ठीक है। तो ऊपर हमने खड़ी जबर का सबक पढ़ा है और अब है खड़ी जबर की मश्क, ठीक है। या जबर खा यख, शीन खड़ी जबर शा,
यख्शा यख्शा। सीन जबर सा, जीम खड़ी जबर जा, सजा। कॉफ जबर क़ा, लाम खड़ी जबर ला, क़ाला। आइन जबर आ, लाम खड़ी जबर ला, आला। गैन जबर ग, वाव खड़ी जबर वा, गवा। आइन जबर आ, स्वाद खड़ी जबर सौ, आसौ। आइन जबर आ, सीन खड़ी जबर सा, आसा। तो जबर ता, गैन खड़ी जबर गौ, तौगा। अपने तो को पुर पढ़ना है, तौगा। या जबर हा, याह। या खड़ी जबर या, याह या। याह, हा को गले के दरमियान से, याह या। हमजा जबर हा, आह। वाव खड़ी जबर वा, आहवा। इसी तरह से रोमा, रोआ, यारो, इसहाक। बगैर जोड़ के भी आपको पढ़ना आना चाहिए, इसहाक। खारा, अगर आप वक्फ करते हैं तो इसहाक, काफ के ऊपर आपने कलकला करना है, खारा, खार। ठीक है, तो ये इसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से याद कर लें। इसके अलावा फिर जहां पर भी ऐसे लफ्ज आएंगे खड़ी जबर वाले, आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी। अब हमारे सामने सूरतों का पेज खुल चुका है। जो 3 सूरतें मैंने लेवल 3 के लिए सिलेक्ट की थी, वो तीनों सूरतें एक ही पेज पर हैं, इसलिए कि आपको याद करने में और पढ़ने में आसानी रहे, और एक ही पेज पर तीनों सूरतें इकट्ठी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सूरतुल माऊन। ठीक है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रा को आपने पुर पढ़ना है। ठीक है, और जाल को आपने खींचना है या मद्दा की वजह से। और बिद्दीन, युकज़्ज़ी, जाल जबान की नोक को सामने वाले 2 दांतों के सिरे से लगाएंगे, युकज़्ज़िबु बिद्दीन। बिद्दीन में आप देख रहे हैं या मद्दा। ठीक है, या से पहले जेर है तो ये या मद्दा है, बिद्दीन। फज़ालिकल्लज़ी, खड़ी जबर आपने पढ़ा, अलिफ एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। इसी तरह आपने रूफे मद्दा पढ़े हैं, तो ये देखें यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है रूफे मद्दा की। ठीक है, जी, दी, जी, यती, यती में ती। और आई, यहाँ रूफे लीन की आपकी प्रैक्टिस हो रही है। या से पहले जबर है हमजा के ऊपर, तो हरूफे लीन में से, ठीक है, हरफ या। ठीक है, वला याहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, तो को पुर पढ़ेंगे, अला तआमिल मिस्कीन। यहाँ पे देखें अलिफ मद्दा, आइन से अलिफ से पहले आइन के ऊपर जबर है, तो अलिफ मद्दा, अला तआमिल मिस्कीन। और यहाँ पर या मद्दा, फवई, वई में देखें या लीन, फवैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन में या मद्दा, अल्लज़ीना, ज़ीना। ठीक है, जाल का मखरज आप अदा करेंगे नरमी से, जबान की नोक और सामने वाले 2 दांतों के सिरे से, और ये याए मद्दा है। अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम, यहाँ इख्फा हो रहा है, अन स्वलातिहिम साहून, साहून में भी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा। अल्लज़ीना हुम युराऊन, युराऊन में अलिफ मद्दा, यानी यहाँ पे ये मद है, बड़ी मद है, इसको भी खींचना है। और हरफ मद्दा भी है, अलिफ से पहले रा के ऊपर जबर है, तो अलिफ मद्दा और वाव मद्दा। वयमनऊनल माऊन। ठीक है, ये इसको आप एक दफा अच्छे तरीके से सूरतुल माऊन को सुन ले, ताकि आप इसको पहले याद कर लें, फिर सूरतुल हुमाजा की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन,
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. चलें अब हम करेंगे सूरतुल हुमाज़ा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वही में या लीन देखें आ गया. वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिल लुमाज़ा. अल्लज़ी, अब हम अल्लज़ी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पे नून कुतनी पैदा होगा. ठीक है, ये नून कुतनी है, छोटा सा जो नून है इसको कहते हैं नून कुतनी. अगर मिलाकर पढ़ते हैं तो नून कुतनी पढ़ा जाएगा. अगर हम हुमज़ा पे रुक जाते हैं तो आगे से हम पढ़ेंगे तो अल्लाज़ी पढ़ेंगे, फिर नून से शुरू नहीं करेंगे, फिर नून नहीं पढ़ा जाता, नून खत्म हो जाता है. ठीक है, इस तरह से भी आपको पढ़ के बताती हूँ कि नून कुतनी कैसे पढ़ा जाता है. वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिल लुमाज़ातिन अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा. ठीक है, और अगर हम रुक गए हुमाज़ातिल लुमाज़ा तो फिर हम पढ़ेंगे अल्लज़ी, जाल को खींचेंगे या मद्दा की वजह से. जमअ, तीनों हरफों को छोटा पढ़ना है. मालम व, मीम के साथ अलिफ मद्दा. मालम व, यहाँ गुन्ना करेंगे. मालम व अद्ददा. यहसबु अन्ना, नून मुशद्दद का गुन्ना. मालहू अखलदा, हु के ऊपर मद है, मद सिला कुबरा इसको बोलते हैं. मालहू अखलदा. कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा. यहाँ पे जो है इक़लाब हो रहा है. युम्बा, नून की जगह पे हमने मीम पढ़ना है. युम्बा और गुन्ना करते हुए, और नून मुशद्दद का गुन्ना. फिल हुतमा, तो को पुर पढ़ेंगे. वमा अदराक मल हुतमा, दाल के ऊपर कलकला करेंगे और आपके ऊपर खड़ी जबर है, खींचेंगे. नारुल्लाहिल मुक़दा, नून के साथ अलिफ है. ठीक है, अलिफ मद्दा, और लफ्ज़ ला को मोटा पढ़ेंगे, और मुक़दा वाव मद्दा है. नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा. ती अल्लती या मद्दा, तो को पुर पढ़ेंगे. तत्वा, ठीक है, अलल अफ़इदा. इन्नाहा, नून मुशद्दद का गुन्ना, और हा के साथ अलिफ मद्दा है. इन्नाहा अलैहिम, अलैहिम में या मद्दा है. अलैहिम, यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, गुन्ना करेंगे. इदगाम में शफ भी हो रहा है, और यहाँ वाव पे झटका देंगे. मुंह ऐसे करके मुंह. स्वाद को पुर पढ़ेंगे. मुंह स्वादा. इन्नाहा अलैहिम मुस्वदा फी अमदिम मुमद्ददा. फी या मद्दा. फी अमदिम मुमद्ददा. ठीक है, एक दफा सुन लें किरात के साथ कैसे आपने पढ़ना है नमाज के अंदर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा. यहसबु अन्ना मालहु अखलदा. कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा. वमा अदराक मल हुतमा. नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा. इन्नहा अलैहिम मुक़दा फी अमदिम मुमद्ददा. ठीक है, आगे है. अब हम पढ़ेंगे सूरतुल अस्र. सूरतुल अस्र.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र, स्वाद को पुर पढ़ना है, ठीक है। वल अस्र, ठीक है। रा के ऊपर अगर हम वक्फ करते हैं तो रा को भी पुर पढ़ेंगे। वल अस्र इन्नल इंसाना, नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे यहाँ पे, और इंसाना या इख्फा करेंगे, और सीन के साथ अलिफ है। इंसान लफी, या मद्दा, खुस्र, खुस्रिन की बजाय खुस्र। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना, ज़ीना ज़ाल और या मद्दा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। स्वाद भी पुर और बा के जो है वो साकिन है, बिस्सब्री, तो वक्फ करेंगे तो बिस्सब्र, सब्र। देखे बा के ऊपर भी जज़म है और रा के ऊपर जब वक्फ करेंगे इसके ऊपर भी जज़म होगी, तो ये सब पुर पड़े जाएंगे। वतवासौ बिस्सब्र, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको याद करना है, ठीक है। चलें जी, हमारे सामने पेज खुल चुका है। लेवल 3 के लिए जो मैंने दुआएं सिलेक्ट की उसमें क्या है जी, तशाहुद। ये तशाहुद है, यानी अत्ताहियात पे जब बैठते हैं, रुकू और सजूद की हम जैसे पहले लेवल 2 में पढ़ चुके हैं, तो अब लेवल 3 में हम पढ़ेंगे तशाहुद, ठीक है। तो ये जब हमने या तो हा को गले के दरमियान से, ठीक है, ही, अत्ताहियातु अलिफ मद्दा, अत्ताहियातु लिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह को बारीक भी पढ़ेंगे और खड़ी जबर है, लिल्लाही, वस्सलावातु, वस्सलावातु, लाम को छोटा पढ़ेंगे और स्वाद को पुर, वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अलिफ मद्दा, बातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐसे हमने पढ़ना है, ठीक है। अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वबरकातुहु है, और अगर हम रुकते हैं तो हम पढ़ते हैं वबरकातुहु। अस्सलामु अलैना, आइन को गले के दरमियान से, अस्सलामु अलैना, अलिफ मद्दा, अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, इबा, ठीक है, अलिफ मद्दा है, इबादिल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर खड़ी जबर, इबादिल्लाहिस, स्वाद को पूर और खड़ी जबर, हिस सालिहीन। अशहदु, हा, अशहदु अल्लाह इला, अन ला इला नहीं कहना, अल्लाह, ठीक है, नून लाम में दाखिल हो गया है, तो पढ़ेंगे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, इल्लल्लाहु, व अशहदु अन्ना, नून का गुन्ना करेंगे, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ठीक है। बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ दोनों होंठों को मिलाएंगे और गुन्ना करेंगे मीम पर, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हु है तो व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है, व रसूलु अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है। और इसी तरह ये देखें, अशहदु अल्ला इला, ये वुजू के बाद भी, ये दोनों दुआएं जो हैं ये वुजू के बाद पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम वुजू कर लेते हैं, चाहे हम नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं, या हम कुरान पढ़ने के लिए वुजू कर रहे हैं, या हम वैसे ही बावुजू रहना चाहते हैं, जब भी हम वुजू करेंगे हम ये दो दुआएं पढ़ेंगे, ठीक है। और हदीस के अल्फाज हैं कि जब कोई वुजू करके अपनी किबला रुख होकर तशहुद की उंगली खड़ी करके कोई इंसान ये पढ़ता है और ये दुआ पढ़ता है, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ठीक है।
यानी कि वो डायरेक्ट जन्नत में दाखिल हो सकता है, उसके लिए यानी वो जन्नत में दाखिल होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु। ठीक है, सेम ये। उसके बाद अल्लाहुम्मा, लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ना, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ठीक है, ये आपने दो दुआएं वुजू करने के बाद आपने ये दो दुआएं पढ़नी है। ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे सामने पेज खुल चुका है बाकियातुस सालिहात। बाकियात सालिहात ये वो अल्फाज हैं, ये वो तस्बीहात हैं जो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद हैं। तो इनका जबान के ऊपर विर्द रखना चाहिए, अपनी जबान को जिक्र से तर रखना चाहिए, उसके ऊपर जिक्र चलता रहे। ठीक है, तो उसके लिए ये कलिमात हैं जो कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, इनको कहते हैं बाकियात सालिहात। ठीक है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, इसमें से आप देखें नमाज के बाद हम तस्बीहात जो पढ़ते हैं अपनी उंगलियों पर 33 दफा, 33 दफा हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह दफा, यानी 33 दफा 33 मरतबा, वल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर, या बाज हदीस में आता है 34 मरतबा अल्लाह अकबर। और अगर हम 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ते हैं तो फिर 100 का आदद पूरा करने के लिए हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ठीक है, तो इस तरह से भी 33 दफा ये, 33 दफा ये और 34 दफा ये भी पढ़ सकते हैं। और तीनों को 33 दफा पढ़ने के बाद 33 दफा पढ़ने के बाद एंड पे फिर वो कलमा पढ़ा जाता है। तो ये हैं बाकियातुस सालिहात जिनसे हमारी जबान जो है वो तर रहे, जिक्र करती रहे। तो उसमें ये अज़कार हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बाकियातुस सालिहात, अल्लाह ताला के बहुत ही ज्यादा पसंदीदा कलिमात हैं। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर जो है वो भी मुकम्मल हुआ। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट सबक भी आप तक इसी तरह रूटीन से पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो उसको भी आप ज़रूर लाइक करें और दूसरे लोगों से ज़रूर शेयर करें ताकि इस कार्य खैर में आपका हिस्सा हो। जितने लोगों को आप शेयर करेंगे वो लोग इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनेगा। और इस चैनल के साथ आपके तामुन की भरपूर ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर तामुन करें और इस चैनल को आगे लेकर चलें। ये आपका अपना चैनल है और इसको इसकी कामयाबी के लिए ज़रूर दुआ करें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।